Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the leaching requirement and why leaching is done in saline soil and how it is calculated and what is the formula of leaching requirement? It is very important. So in saline soil, there is a problem of excess soluble salt, and these salts create the problem in plant growth and development. Either they create the toxicity of itself or antagonistic effect and depress the movement or absorption of the other आयन। तो ये जो सलाइन सॉइल होती है इसमें सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं और ये सॉल्युबल साल्ट से प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो इन साल्ट्स को रूट जोन से नीचे लीच करना जरूरी होता है सो दैट देयर कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड। सो लीचिंग इज डन इन ए कंट्रोल्ड मैनर बिकॉज साल्ट्स आर essential nutrient, chloride, sulfate, nitrate, calcium, magnesium, these form the salt and these are the essential nutrient. But whenever there is a toxicity of sodium, excess sodium that causes the toxicity, similarly if there is excess calcium, then suppress the absorption of magnesium and other cations. So that's why this removal of salt is necessary. So this removal beyond the root zone through water is known as leaching. So how much water is required for leaching is the leaching requirement. Suppose it is a normal soil, and in this normal soil a different type of ions are present. Calcium is there, magnesium is there, chloride is there, sulfate is there, sodium, potassium, many salts are present but under control. Salinity is maintained and this salinity is very low. Suppose salt content is less than 0.2% and these salts do not interfere with the plant growth. सो नो प्रॉब्लम इन प्लांट ग्रोथ। तो अगर साल्ट कंटेंट या हम कहें कि आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन है तो ये तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, प्लांट को चाहिए, इसलिए इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम इसमें इरिगेशन डेप्थ मान लीजिए हम इसमें इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन इज डेप्थ इज 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर इरिगेशन है इससे लीचिंग नहीं होगी एंड दिस 6 सेंटीमीटर डेप्थ इज मेंटेन into the soil and water remain in root zone and this 6 centimeter water is available to the plant and there is no leaching. Leaching is the movement of ion with the water beyond the root zone or downward movement of ion with the water is known as leaching. Leaching क्या है? जब आयन वाटर के साथ नीचे मूव करता है तो उसे लीचिंग कहते हैं, अगर सिर्फ पानी मूव कर रहा है तो उसको पर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ जो है इसमें कोई लीचिंग की जरूरत नहीं है। सपोज सॉइल इज सैलाइन, नाउ सॉइल इज सैलाइन, देयर इज एक्सेस ऑफ सपोज excess of carbonate, excess of calcium, so excess salts are there. It means if we are giving the 6 centimeter irrigation, so this salt remain into the root zone. अब क्या होगा, ये salt root zone में रहेंगे and will create the toxicity और plant में toxicity करेंगे, osmotic potential को माइनस करेंगे, नेगेटिव साइड पे करेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आएगा, दूसरे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पीएच बढ़ जाएगी। देयर आर सेवरल इफेक्ट्स ऑफ दिस सलाइन। सो इट मींस सम साल्ट, सम अमाउंट ऑफ साल्ट नीड्स टू बी रिमूव। तो हमें कुछ अमाउंट साल्ट की रिमूव करनी पड़ेगी। यहाँ ध्यान दीजिए हम सारे साल्ट को रिमूव नहीं करते क्योंकि सारे ये साल्ट क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, नहीं तो प्लांट को डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं एक कंट्रोल्ड वे में कि कुछ को ही हम कुछ ही आयन हमारे लीच करें। सो इट मीन्स वी हैव टू गिव मोर वाटर ओवर एंड अबव इरिगेशन। सपोज इरिगेशन इज 6 सेंटीमीटर, अब 6 सेंटीमीटर से तो लीच नहीं हो रहा बिकॉज 6 सेंटीमीटर वाटर इज रिमेन इन रूट जोन। सो इट मीन्स वी हैव टू गिव more water. Suppose we are giving 2 centimeter extra water. So now the water 2 centimeter water will move and there will be leaching of water. Now the total depth of irrigation water is 6 plus 2, 8 centimeter. So it means in normal soil our depth of irrigation is 6 centimeter, but in saline soil to maintain the soil we have to give 2 centimeter extra water. तो ये हमने क्या दिया, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा वाटर दिया, यही जो है हमारा लीचिंग के लिए जरूरत पड़ी। तो हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग। एक मैंने एक एग्जांपल बताया कि हमें लीचिंग के लिए कितना पानी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 2 सेंटीमीटर देना पड़ रहा है। तो इट मींस लीचिंग रिक्वायरमेंट इन परसेंटेज is this 2 centimeter divided by total depth of irrigation. Water required for the leaching, for draining, it means this 2 centimeter is the draining water. It is the draining, drain हो रहा है, drainage हो रहा है, इसका internal drainage हो रहा है। 2 centimeter
divided by this 8 centimeter multiplied by 100, so it is 1/4, that is it is 25%. So leaching requirement is 25%. It means 25% of water of total irrigation is used in leaching. That is the leaching requirement. तो ये मैंने आपको बताया कि क्या है leaching. So first the leaching is a downward movement of ion with the percolating water. That is the leaching. Why leaching is required? Whenever there is excess concentration of soluble salt, then leaching is required. Otherwise they interfere with the plant growth and development. तो लीचिंग क्या है, लीचिंग की जरूरत क्यों है, एंड हाउ लीचिंग इज डन? लीचिंग इज डन विद द इरिगेशन वाटर. तो जब इरिगेशन हम देंगे तो उसी के साथ लीचिंग होगी. सो दिस इज द ड्रेनेज वाटर एंड दिस टोटल डेप्थ इज इरिगेशन. दिस इज द इरिगेशन 8 सेंटीमीटर. सो दिस इज दी वी कैन से डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर DIW, टोटल डेप्थ जिसको हम 8 सेंटीमीटर कह रहे हैं, एंड दिस इज द 2 सेंटीमीटर इज डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर. सो नाउ लीचिंग रिक्वायरमेंट LR, leaching requirement is depth of drainage water divided by depth of irrigation water into 100. When it is expressed in in fraction, suppose it is 0.25, then it is known as leaching fraction. तो हम इसको leaching fraction हम कह सकते हैं. तो leaching requirement is the extra water over and above irrigation to maintain the soil up to a specified level. तो लीचिंग रिक्वायरमेंट इज द डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर. तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट. इफ देयर इज अ नॉर्मल सॉइल देन नो लीचिंग रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड. तो हम केवल 6 सेंटीमीटर पानी देंगे, केवल 6 सेंटीमीटर डेप्थ करेंगे. इफ देयर इज salts are present, then we will increase the depth. So in this case 2 centimeter water is required to drain to removal of salt. Suppose salt concentration is high, और ज़्यादा इससे हो गया है, सपोज मोर साल्ट्स आर प्रेजेंट, इट मीन्स वी हैव टू गिव मोर वाटर. अगर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमें और ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. नाउ इन दिस केस सपोज द डेप्थ इज सपोज वी आर गिविंग नॉर्मल वाटर 6 सेंटीमीटर एंड द 3 सेंटीमीटर फॉर द फॉर ड्रेनिंग द वाटर फॉर रिमूवल द salt. So how much water is 9 centimeter. Now in this case leaching requirement is, this is the डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर 9 सेंटीमीटर. अब हमको कितना पानी देना पड़ेगा? 9 सेंटीमीटर. एंड दिस इज द नॉर्मल वाटर फॉर कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप, जो नॉर्मल हम क्रॉप को दे रहे हैं, लेकिन ये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. सो दिस इज द डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर. नाउ इन दिस केस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर इंटू 100, दैट इज 1/3 इंटू 100, that is 33.33%. So leaching requirement is increased as the concentration of the salt increases, then leaching requirement increases. तो जो नॉर्मल हम वाटर दे रहे हैं वो कंज्यूमटिव यूज ऑफ वाटर है. सो दिस 6 सेंटीमीटर इज कंज्यूमटिव यूज ऑफ वाटर, और वी कैन से दिस इज द ET. तो कंज्यूमटिव यूज ऑफ वाटर वो है जो हम नॉर्मल क्रॉप को हम देते हैं, और उसमें अगर सॉइल में साल्ट्स प्रेजेंट है, साल्ट्स आर प्रेजेंट, इट मीन्स वी हैव टू गिव मोर वाटर टू लीच द साल्ट. तो जो हम इरिगेशन से एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं साल्ट को लीच करने के लिए, वही हमारा लीचिंग रिक्वायरमेंट में हो जाएगा. उसमें पानी हमें इरिगेशन डेप्थ ऐड करनी पड़ेगी. तो यहाँ देखिए इस एग्जांपल में कितना हुआ, 6 नॉर्मल था, 3 सेंटीमीटर में दिया, 9 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, एंड इट मीन्स वी आर गिविंग 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा वाटर. तो टोटल डेप्थ इज 9 सेंटीमीटर. सो 3/9, 33.3%. इन दिस केस कंज्यूमटिव यूज ऑफ वाटर इज 6 सेंटीमीटर. Salt, to remove the salt, to leach the salt, how much water is required beyond the root zone? 2 centimeter. It means total depth is 8 centimeter. So this is the leaching requirement, and it depends upon the salt concentration. So leaching requirement is the amount of drainage water or amount of water in irrigation over and above normal irrigation, to maintain the salt content एट ए स्पेसिफाइड लेवल. स्पेसिफाइड लेवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारे साल्ट को हमें रिमूव नहीं करना है, नहीं तो ये न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे सॉइल से, एंड देयर विल बी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. तो दीज साल्ट्स आर इसेंशियल, बट द प्रॉब्लम इज देयर हाई कंसंट्रेशन. तो इनके कंसंट्रेशन को कम करते हैं हम लीचिंग के थ्रू. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द लीचिंग रिक्वायरमेंट. एंड देयर इज अनदर फार्मूला फॉर दिस लीचिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन. तो ये पहले आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज दी लीचिंग
why what is leaching requirement and why leaching is done. Leaching is not done in all the soil. Leaching is required only in saline soil. हर soil में leaching नहीं करते हैं. Leaching जिनमें excess soluble salt है या excess सोडियम है, लाइक एल्कली सॉइल. सो एक्सेस साल्ट्स को रिमूव करने के लिए ही हम लीचिंग करते हैं. लीचिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन ऑल सॉइल. हर सॉइल में लीचिंग की जरूरत नहीं है, उसी में करनी है वेन एवर देयर इज एक्सेस साल्ट. सो लीचिंग रिक्वायरमेंट फार्मूला इज सिंपल. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर टू ड्रेन टू लीच द साल्ट, दैट इज द डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर, डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर. And depth of irrigation water, it is decided by consumptive use of water plus depth of drainage water. अभी हमने जो पिछले एग्जाम्पल में देखा consumptive use कितना था 6 सेंटीमीटर and depth of drainage water 2 सेंटीमीटर. अभी हमने जो पिछला एग्जाम्पल देखा. then depth of irrigation water 8 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर था नॉर्मली क्रॉप में 6 सेंटीमीटर, and in the first example we kept it as a 2 सेंटीमीटर, then it was 8 सेंटीमीटर. तो यहां से हमने निकाला था लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, दैट इज 2/8 इंटू 100, दैट इज 25%. ये हमने निकाला था. व्हाट इज द अनदर फार्मूला. जो सेकंड एग्जांपल था उसमें हमने 3 सेंटीमीटर किया था बिकॉज ऑफ एक्सेस साल्ट. तो ये 9 हो गया था, ये 3 हो गया था, देन ये 9 6 9. तो हमने जब नेक्स्ट लीचिंग हमारी क्या आई थी 3/9 इंटू 100, तो ये हमारे हो गया था 33.33%. एज द डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर इज इंक्रीजिंग, दिस इज डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज इंक्रीजिंग, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन दिस डेप्थ ऑफ ड्रेनेज डिपेंड अपॉन द salt content in soil. If salt content is high, then more depth of drainage is required. And this is the consumptive use of water. It vary from crop to crop. Rice, wheat, maize, हर sugarcane हर crop की ये लिए क्या होगी, अलग अलग होगी. So this formula can be written as rewrite as dW, depth of drainage water is equal to depth of irrigation water minus consumptive use. And consumptive use is what is the ET. जो ET होती है उसी को हम consumptive use of water कहते हैं. How much water is required in evapotranspiration and that equal amount is given in irrigation. जितनी ET होती है उतनी हम irrigation देते हैं. तो अब अगर हम LR को देखते हैं, leaching requirement is equal to depth of drainage water divided by depth of irrigation water. Now depth of drainage water can be written as depth of irrigation water minus consumptive use. ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं. इसको रीराइट हमने कर दिया दोबारा. डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर एंड कंजम्पटिव यूज को हम लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर माइनस कंजम्पटिव यूज को हम लिख सकते हैं ET डिवाइडेड बाई DIW. इसको हमने ऐसे लिखा, इट मीन्स LR इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर माइनस ET डिवाइडेड बाई डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर. तो ये इसको LR जो लीचिंग रिक्वायरमेंट है, ये इसको फार्मूला हम बना सकते हैं एक, कि हम कैसे डेप्थ ऑफ इरिगेशन निकालें उसमें. सो दिस मल्टीप्लाई कर दें हम LR इंटू डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर माइनस ET, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर ET इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर माइनस LR इंटू डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, एंड ET इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर इज कॉमन, तो 1 माइनस LR. इसको रीराइट कर दिया हमने, पलट के लिख दिया इसको. सो DIW डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर 1 माइनस LR इज इक्वल टू ET, और केवल मैंने इसको राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लिख दिया, चेंज किया है, केवल इसको इंटरचेंज किया है इक्वेशन को. सो डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर इज इक्वल टू ET 1 minus LR. So this is the formula of depth of irrigation. How to decide the depth of irrigation water? It means what is the ET of the crop and what is the leaching requirement in soil. So this is ET is decided by the crop requirement and LR decided by the salt content. Then we can calculate the depth of irrigation. For example, the crop for a crop ET is suppose 300 mm. 300 mm ET है उसकी, and the LR is 25%. LR is leaching requirement is 25%, means 0.25. So means how much irrigation water is required so that salinity is maintained.
So in this case, depth of irrigation water is equal to 300, 1 minus 0.25 is equal to 300, 0.75, इसको करेंगे into 100, 4 times, that is the 400 mm. So depth of irrigation is 400 mm. इसका मतलब हमको अगर क्रॉप की रिक्वायरमेंट 300 mm है और लीचिंग रिक्वायरमेंट साल्ट को मेंटेन करने के लिए 25% है, तो हमको कितना इरिगेशन देंगे? 400 mm. Suppose soil there is no salinity problem, salts are maintained, then how much irrigation water is required? Only 300 mm. So because of leaching requirement, this depth of irrigation is increased. So this is the leaching requirement which is required to leach the excess soluble salt to maintain the soil salinity at a specified level. So over and above irrigation water is required. Normal irrigation water से over and above water चाहिए होता है, तब हम total depth of irrigation निकालेंगे. So this is the formula. और बेसिक फार्मूला मैंने आपको बताया था. बेसिक फार्मूला इज DIW इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर. तो जितना डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर जो हमें एक्स्ट्रा वाटर चाहिए उसको सैलिनिटी को मेंटेन करने के लिए. सॉरी, दिस इज द LR, दिस इज द लीचिंग रिक्वायरमेंट. सो दिस इज द अबाउट द लीचिंग रिक्वायरमेंट. सो नाउ it would be clear हो गया होगा कि what is leaching requirement and which type of leaching is required and how it is calculated. Thank you very much.